switch, like the last press conference, he spoke about the lack of conversation and he wasn't aware. Have you been part of these conversations? And one more clarity, like, was Virat aware of the fact that in case if he gives up the T20 captaincy, he'll also have to quit the ODI captaincy? Look, that was Virat's decision, and nobody actually told him to quit the captaincy. And once he quit the captaincy of T20, obviously selectors have to think, because what our thinking is basically all five selectors think that it should be white ball, there should be one captain, because it will be easy for the selectors to plan things. And we did inform him regarding this, and obviously the 50 overs game decision was the selectors one, and T20 was his decision. But was he informed at the point when he put in his when he quit as T20 captain? At that point, before the World Cup, T20 World Cup, was he informed that now he also won't be able to lead the ODI team? Yes, as soon as the selection committee came to the point and they discussed, and immediately I called up Virat on that afternoon, because the first reason what selectors think we should not, because it was a test selection immediately after that at 5 o'clock. We never wanted to inform him in that selection committee. That's why I called him as soon as our meeting was over. And we informed him that this is what selectors think, and that there will be one white ball captain. There were a couple of questions, and we had a good conversation, and he agreed on to that. And the most important thing is that, like what we discussed, I can't disclose it in this press conference, but we had a good chat. And the most important thing is Virat is a very important player for Indian cricket. I respect the entire selection committee, we want him to play for India, keep getting runs for India, because the team revolves around there. And but वहाँ पर जब प्लानिंग की बात आती है, मैं हिंदी में भी बोलूंगा बीच में, जब प्लानिंग की बात बीच में आती है कि व्हाइट बॉल के अगर आप दो कैप्टन्स के साथ क्या सेलेक्टर्स कंफर्टेबल हैं कि नहीं, तो वहां सेलेक्टर्स की अपनी सोच थी कि वी मस्ट हैव वन कैप्टन एंड वन रेड बॉल कैप्टन, एंड ही वाज अ रेड बॉल कैप्टन एट दैट टाइम. एंड वो उस समय मीटिंग में आए अराउंड 5:30, एंड that was it. And we informed him before that, and we just wanted to go forward with that. I know it's basically a hard decision. मतलब बहुत लोग कहेंगे कि ये हार्ड डिसीजन है सेलेक्टर्स के लिए भी, बिकॉज सेलेक्टर्स को बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं. दिस इज यू आर फॉर, एंड same is when you making a playing 11, you take hard decisions. Sometimes need of the hour is that this guy is going to play, this guy is not going to play. These are hard decisions. When we took that decision, and I know Virat is important, and he is going to be very important player for us in coming days and coming years. Indrajit Sengupta. Thank you. Chetan sir, Virat has informed that he was told just 1.5 hours before the one-day selection meeting that he was not removed from the captaincy. So what do you want to tell about this? That was this? मैंने अभी इंद्रजीत जी अभी इसी का आंसर दिया है कि हम लोगों ने ये बताया था विराट को, और हम टीम मीटिंग में नहीं बताना चाहते थे. मैंने पूरा आपको अभी बताया है, एंड आई होप आपने सुना होगा. उसी की डिस्कशन कर रहा था. Vijay Tagore and then Nitin Srivastava. Chetan bhai, happy new year in advance. I just wanted to ask you about Rohit's chronic fitness issues. Chetan bhai, he has always been troubled by fitness and hamstring. You have put a lot of lot of money and his trust on Rohit. He could not play the test series, and you have announced him as the ODI captain. Unfortunately, he could not get fit. With 2 World Cups coming, Chetan bhai, you think you should have conversations or manage his workload so that he cannot be unfit for the important, crucial tournaments? Vijay ji, this is the only reason we
हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इस सीरीज में he goes and do his rehab, work on his fitness, work on his muscles. कि ये देखिए इतनी क्रिकेट है, इंजरी, कोई भी प्लेयर इंजरी नहीं चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू प्ले, कोई जानबूझ के इंजर्ड नहीं होता है। और यही हमारा रीजन था कि इस बार जो 3 मैचेस में कि रोहित को रोकने का, कि वो 100% फिट होंगे। वर्ल्ड कप है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने आ रही है। दैट इज द रीजन we had a good chat with Rohit. All selectors had a good chat with Rohit, and that is the reason he's not going to South Africa, and KL Rahul is the captain. Sure, thank you. चेतन सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ। बेसिकली आपने एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया है आप ही कि विराट कोहली के कप्तानी को लेकर, लेकिन उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनको जस्ट 90 मिनट्स पहले इन्फॉर्म किया गया, और T20 के बारे में उन्होंने बोला कि बोर्ड प्रेसिडेंट ने उनको बोला था कि आप अभी मत छोड़िए। कोई कंफ्यूजन है क्योंकि विराट लगातार ये कह रहे थे कि उनको ऐसा नहीं बोला गया, तो क्या इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन बोर्ड और विद द प्लेयर? देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन सरप्राइजिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, एंड द थिंग इज कि 90 मिनट्स पहले बताया गया था, मतलब वो जो विराट ने कहा टीम सिलेक्शन वनडे की आज हो रही है, हमने इसलिए वहां पर अनाउंस किया कि देखिए वी वांट एवरीबॉडी टू कंसंट्रेट ऑन क्रिकेट, मिडिल ऑफ द सीरीज यू कैन जस्ट कॉल समबडी अप एंड से कि नहीं आप कैप्टन नहीं है। इससे पहले हमने टाइम दिया विराट को भी, हमने टाइम दिया रोहित को भी, कि दे कैन जस्ट गेट इनटू द सिस्टम, उनके अंदर चला जाए वो चीज। एंड वो मेन हमारा कम्युनिकेशन की बात है, सेलेक्टर्स का बोर्ड के साथ ब्रिलियंट कम्युनिकेशन है। देयर इज नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद द टीम मैनेजमेंट, विद द कैप्टन, इवन विद द डोमेस्टिक प्लेयर्स। आप बात करेंगे, मतलब हम ये 5 सेलेक्टर्स हर डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ जाकर बात करते हैं, बिकॉज वो हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है, क्योंकि हम लोग इसलिए उस दिन हमने ये बताने की कोशिश की कि टाइम मिलेगा। टीम आज वनडे की टीम तो आज सिलेक्ट हो रही है, उस दिन तो टेस्ट की टीम अनाउंस हो रही थी, तब भी हमने विराट को इन्फॉर्म किया, और हमने मीटिंग में इन्फॉर्म नहीं किया, उससे पहले इन्फॉर्म किया। देखिए आप कैप्टन को तभी इन्फॉर्म कर पाएंगे जब सेलेक्टर्स डिसाइड कर पाएंगे और सेलेक्टर्स की मीटिंग होगी। मैं अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, वी आर 5 ऑफ अस। तो जब तक वो एक सेलेक्टर हमारा साउथ अफ्रीका में है, जब तक वो टाइमिंग हम लोग डिसाइड किया, इमीडिएटली वी इन्फॉर्म्ड द कैप्टन, एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ द सेलेक्टर्स। Bhushan Sarkar followed by Shayan Acharya. Just I know you were expecting the question. मेरा just ये जानना था कि विराट ने स्पेसिफिकली कहा कि उनको किसी ने नहीं कहा कि आप मत छोड़िए, तो क्या ये बात सही है? मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट ने काफी सारे इंटरव्यूज में कहा कि उनको रिकंसीडर करने के लिए बोला गया था, बट ही वाज नॉट रेडी, तो क्या ये बात सही है कि उनको किसी ने नहीं बोला था कि आप मत छोड़िए, आप रिकंसीडर कीजिए? ये बात उनसे हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं कुशन, जब मीटिंग शुरू हुआ कि इट वाज ए सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज कुछ समय पहले वर्ल्ड कप सामने है और आपको ये न्यूज सुनने को मिलती है, तो नॉर्मल रिएक्शन सभी का क्या होगा। और जितने लोग वहां मौजूद थे, जितने वहां मीटिंग के अंदर थे, सभी ने कहा है कि आप इस डिसीजन के ऊपर सोचिए, इसके बारे में बाद में बात की जा सकती है, वर्ल्ड कप के बाद बात की जा सकती है। ऑल सेलेक्टर्स फेल्ट दैट टाइम कि दिस कैन अफेक्ट द वर्ल्ड कप, एंड वी ऑल फेल्ट दैट इट विल अफेक्ट, and it was been told to Virat for the sake of Indian cricket, please continue as the captain. It was told by everybody available in the meeting. All conveners are there, the board officials were there. तो सभी ने बोला है, कौन नहीं बोलेगा? मतलब आप बताइए कि सडनली ऐसी न्यूज अगर आपके पास आएगी, यू आर इन अ शॉक। मतलब ये तो चलो आप सेलेक्टर्स, तो ऑब्वियसली यही आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? नोबडी इज गोइंग टू जस्ट से कि नहीं बहुत कोई नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ द वर्ल्ड कप उस समय था।
तो वी थॉट कि वर्ल्ड कप के बाद बात कर ली जाए, बट देखिए उस समय देन वी रिगार्डेड विराट, वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, वी नेवर वांटेड कि ये चीज अफेक्ट करे, वी टुक इट एंड वी एवरीबडी रिक्वेस्टेड कि आप इस वर्ल्ड कप के बाद देख लीजिए, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, बट ही हैज हिज प्लान्स। देखो वी रिस्पेक्ट हिम, ही इज जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, ही हमारी धरोहर है देश की, विराट कोहली, हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया है, एंड दिस व्हाट ही टोल्ड इन द मीडिया आल्सो कि WTC से वो सोचना शुरू कर रहे थे, बट उस समय यस एवरीबडी टोल्ड हिम टू थिंक अबाउट इट because it's important, we can speak after the vote. Because the main aim for everybody, like मैं बार बार कहता हूँ, मैं टीम मैनेजमेंट से भी बात करता हूँ, बोर्ड से भी, सेलेक्टर्स बात करते हैं रेगुलरली, आवर गोल इज वन, इट्स टीम मैनेजमेंट। बोर्ड की पहले बात कर लेते हैं, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, प्लेयर्स, द गोल इज वन, टू मेक the Indian team on the top. And we don't want controversies. We don't want controversies. We have never come out. Selectors, that is the reason we don't come out. Our job is to select the team. Make sure the best guy go and play for the country. और ये ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी आती है तो दुख लगता है एज ए क्रिकेटर। एंड मतलब मैं तो वो हंस रहा था किसी के साथ कि जाज को 10 विकेट लेने के बाद अगर न्यूजीलैंड ने ड्रॉप किया, अगर कहीं इन 5 सेलेक्टर्स ने किया होता तो पता नहीं क्या हालत होती है हमारी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज फ्रॉम द मीडिया, एंड ऑफ द डे वी वांट all of, even I know all of you also want India to be on top. These are our players. We have to respect our players. If I'm not going to respect my player, I'm not going to respect my captain, I'm not going to respect my youngster, I don't expect the neighboring countries to respect my players. That is my reason I never go in controversies in my life, and I will request you also कि please इस मैटर को यहीं एंड अगर आप कर दे तो ज्यादा बेहतर है, because we're in the middle of the series. Because board officials की आप बात करें, they are always for the team. Selectors की बात करें, we are always for the team, and we are in the middle of the series, and very important series. We won one, we are up by 1-0. We want the team to do 3-0, and we are praying for it. And let's hope the matter ends here only. That will be nice for Indian cricket. Thank you. We'll take a few more questions now. Last few. Chetan bhai. Happy New Year. Same to you. Shayan Acharya, followed by Amol Karadkar. Hi Chetan sir, my question is, you just spoke about the KL Rahul, the youngsters coming forward and taking up. Obviously Rohit, fitness has been a concern for him lately, and obviously he's 5. I mean, maybe after the what are the selectors thinking about the transition phase? Because maybe after 2023 World Cup, if there's a possibility that the baton has to be passed. So what is the thought process going forward? Because the focus clearly is on the youngsters. I know, but if you talk about the 5 selectors, what we think is we are going World Cup to World Cup. We are not. We definitely are preparing for 23 World Cup. But पहला जो हमारा एम है वो हमारा T20 वर्ल्ड कप है। हम उससे आगे सोच ही नहीं रहे। देखिए, हमें अंदाजा लगाने का कोई हक नहीं है कि कौन फिट होगा, कौन अनफिट होगा, कौन कह सकता है कि, और मैंने जैसे पहले कहा कि कोई अनफिट होना नहीं चाहता। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि रोहित को कुछ होगा, माइट बी रोहित कम्स बैक एंड डू वन, ही इज ए ब्रिलियंट प्लेयर, नो डाउट। एंड हम इतना आगे कैसे सोच सकते हैं कि 23 के बाद how the things are. Obviously KL Rahul, I've already told you guys कि we are grooming him. We got now Jasprit Bumrah because he's an experienced guy. We want him to come and learn something there, because it's just one of that series, because our main captain is not fit. So, but the guys are going to learn, and that will be good for Indian cricket. चेतन भाई, आप अभी बोले कि
मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, इंटरनल मिसकम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जब फैंस के साथ आइदर डायरेक्टली और थ्रू द मीडिया कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये कंफ्यूजन हमेशा आगे आता है। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा ओपन हो रहना पड़ेगा? पिछले 5 साल से सिलेक्टर्स हर साल और ज्यादा ककून में जा रहे हैं, ज्यादा कम्युनिकेशन कुछ होता नहीं है ऑफिशियली, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं हूँ यहाँ पर, और बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक everybody knows it used to be the press conferences. अब जो पेंडेमिक की वजह से थोड़ी चीजें रुकी, I hope now the things have started again and it will keep going on because हम लोग कुछ चीज छुपाना नहीं चाहते। देखिए, छुपाता तो वो है ना जो चीज गलत कर रहा हो, हम कुछ नहीं छुपाना चाहते, बट इट्स बिकॉज थिंग्स आर सच, यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड, फिर हालत खराब होती जाती है, तो इसलिए द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीच में रुकी थी। आई होप नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू। Yes, we'll take two more, Harit Joshi and then Nikhil Nas. हाय चेतन भाई, मैं सुन रहा था आप कह रहे थे कि try and end the controversy here. Of course, just one last query about this Virat Kohli episode. उन्होंने जब स्टेटमेंट दी थी कि वो T20 कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, तभी उन्होंने क्लियरली लिखा था कि आई इंटेंड टू कंटिन्यू एज टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन। तो at that point of time, didn't the selectors think it's better to talk to him right now? Can you throw some clarification whether that was the thought process or was he approached at that point itself? देखिए निखिल, जब आप मिडल ऑफ द सीरीज में होते हैं तो आप ऐसी चीजें नहीं बोल पाते। आप तभी डिसीजन लेंगे बिकॉज जब सेलेक्टर्स उस फॉर्मेट के आसपास पहुंचेंगे, दैट इज अ थिंग। तो जब सेलेक्टर्स ने जब चीजें थोड़ी हटी हैं, सीरीज से हम हटे हैं, दैट इज द टाइम वी डिस्कस्ड एंड वी सेलेक्टर्स फील कि व्हाइट बॉल कैप्टन एक होना चाहिए। व्हाइट बॉल को आप डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आती हैं, एंड दिस इज व्हाट वी इन्फॉर्म्ड विराट एंड ही एग्रीड। देखिए, चीजें हैं जो हमारे मन में थी, हमने बताई, and we are always ready 24/7 to discuss anything, Nikhil. There is no problem at all. चेतन जी, हाय, दिस इज निखिल हियर। अब मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली सवाल, वो किसी और ने पूछा था। नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये था मेरा कि आपने जैसे अभी हमें बताया कि जब उन्होंने आपको बताया T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट ने, तो आप थोड़े सरप्राइज थे, थोड़ा शॉकिंग लगा आपको कि उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, और आपने उन्हें कहा नहीं, आप ये टूर्नामेंट के बाद सोचे। एक मुद्दा जो यहाँ पर उठा है वो ये कि क्या उस समय ये भी उन्हें बताया गया था कि अगर आप T20 कप्तानी छोड़ेंगे तो हम व्हाइट बॉल में ODI कप्तान भी कोई और रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक ही व्हाइट बॉल कप्तान हो? क्या ये चीज उस समय बताई गई थी या वो 1.5 घंटे पहले जो सिलेक्शन मीटिंग से कॉल हुई थी तब बताई गई थी? उस समय मतलब जब उन्होंने आके अपना ये बोला कि T20 की कैप्टनसी नहीं करेंगे। हाँ जी, तब या निखिल, अगर आपको ये वाला बोली जाती है विराट के बारे में, वुड यू बी एबल टू टेल एट दैट टाइम कि व्हाइट बॉल का मैं मुझे एक कैप्टन चाहिए या 2 कैप्टन चाहिए? दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। We are in the middle of the World Cup. हमारा वर्ल्ड कप सामने था। उस समय तो हमें ये सोचना था कि हम वर्ल्ड कप में जाकर ये चीज हमारी कहीं अफेक्ट ना करे। उस समय तो we have to cool down the things. हमें तो वो एप्रोप्रिएट टाइम थोड़ा होता है कि आप ये कहेंगे कि आप व्हाइट बॉल छोड़ेंगे तो आपको 50 ओवर्स भी छुड़वा दिया जाएगा। दैट इज नॉट अ राइट टाइम टू डू थिंग्स लाइक दैट। उस समय तो बस रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। बोर्ड में सभी ने बोला, एवरीबडी रिक्वेस्टेड, तो ठीक है। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट वाज नॉट अ टाइम टू डिस्कस थिंग्स लाइक दैट जब आपका वर्ल्ड कप आपके सर के ऊपर हो, एंड दैट इज ICC ट्रॉफी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी वर्क फॉर सो मेनी इयर्स फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू चेतन सर। Sir, we'll take 2 more questions. One is from Sunandan Lele and final one from Kuntal. चेतन भाई, नए साल की शुभकामनाएं पहले से। मैं पूछना चाहता था कि ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ सिलेक्शन कमेटी क्या नजरिए से देखती है, क्योंकि ऐसा हिंदी में कहावत है कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा डाल देना चाहिए। तो जो इन्फॉर्म बैट्समैन है उसको राइट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलना, ये सिलेक्टर्स के मामले में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा?
सर देखिए बिल्कुल राइट टाइम पे मिला है। T20 की टीम में भी वो थे, आज वनडे की टीम में भी वो है। जहां जहां जगह उनकी बन रही है वहां सेलेक्टर्स सोच रहे हैं कि he will go and do wonders for the country. We have selected him. हमने सेलेक्ट किया है। Now it is up to the management कि वो देखना कि वो 11 में कब खेलेंगे, कब उनकी जरूरत है, कब कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, वो चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। बट एट द प्रेजेंट ही वाज इन T20 साइड also against New Zealand and he is in one day side now and he's doing well and he's been rewarded for that. चेतन भाई, मेरा सवाल कुंतल हियर, मेरा सवाल यह है कि आपको लगता है कि लॉन्ग रन के लिए भारतीय क्रिकेट के लिए विराट और रोहित को एक साथ बिठाकर बात करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ क्या आप लोगों के प्लान में है, क्या एक साथ चयन करता है या कोई बात करेंगे? किस बारे में? बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली फाइन बॉस। ये मत तभी मैं कह रहा था ना कि स्पेकुलेशंस पे मत जाइए। देखिए हम लोग क्रिकेटर पहले, सेलेक्टर बाद में। मैं क्रिकेटर हूँ, देयर इज नथिंग, दोनों मतलब आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ और कभी कभी हंसता हूँ। आई वाज द पार्ट ऑफ द मीडिया फॉर अबाउट 20 years, ठीक है। वहां पर हम लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं होता। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम टेलिंग यू, मतलब इतनी अच्छी प्लानिंग्स होती हैं दोनों के बीच में, एंड कैसे चलना है हमने फॉरवर्ड, कैसे हम बात करेंगे, देयर इज एब्सोल्युटली मतलब फैंटास्टिक। आप मेरी जगह कभी बैठते तो आपको मजा आता है वहां पर देख के कि हाउ दीज गाइज आर वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, एज ए फैमिली, एज ए यूनिट। कौन ऐसे बीच में एक फुलझड़ी छोड़ देता है तो वो बहुत दुख लगता है। तभी मैंने कहा ना, कंट्रोवर्सीज को प्लीज 2021 में छोड़ दीजिए, 2022 में लेट्स टॉक हाउ आवर टीम बिकम द बेस्ट, हाउ कैन वी सपोर्ट आवर क्रिकेटर्स। That is important, and there's nothing, and they're brilliant. They sit together, they eat together, they talk to me together. हमारी पूरी selection committee बैठ के बात करती है। There is absolutely, it's like one family, one unit. Thank you, Chairman sir, for sharing your views, and thank you to the members of the media for joining in. And Happy New Year, everyone. Thank you.